some spline modeling tools. ठीक है, spline modeling कैसे करते हैं हम लोग? Okay, in the last lecture we have studied about the spline modeling tools. So in that, what you will have, ये वाला ऑप्शन था splines का. ठीक है, splines, nodes, curves और ये वाले सब ऐसे tools है. Splines के अंदर ये सारे arc, neuron, text, egg section, next nerves curves, nerves point curve, CV curve. ठीक है. ठीक है, it works as a pen tool. Next is a CV curve. Smooth. ठीक है, वैसे कुछ टूल्स हैं for nerves, curves and splines. ठीक है. Just see the points which are remaining. ठीक है, introduction to spline modeling and then import and export file management. Okay, so we have completed all of this part of 3D Max. Next, we have also seen some of the material editors. Okay, two types of material editors are there. One is compact and one is standard material editor. Okay, like a slate material editor. That I will show you again. Okay, whenever. Okay. So while using the materials and using the lights, you have to use this object as a object. You have to use this object as a reference. ठीक है, आपको दूसरे कुछ क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको रेफरेंस के लिए आप लोग ले सकते हो. ठीक है. Just see spaces. ठीक है, थोड़ा स्मूथ करता हूँ इसको. I will apply a plane to this. ठीक है. Now, how we can apply materials on this? I have shown you first. The shortcut for material editor is M. ठीक है. When you press M, you will get this type of material editor. ठीक है. इसके अंदर ये ऐसे स्पीयर्स दिखेंगे आपको. These are nothing but the materials. ठीक है. इसमें कुछ रेडीमेड मटेरियल्स उन्होंने क्रिएट करके रखे हैं. These are some of the ready-made materials. These are some of the settings.
ठीक है, एम प्रेस करोगे तो ऐसे आपको मटेरियल एडिटर इस पे दिखाई देगा. Now how you have to apply these materials? You have to click, drag and drop on the object. ठीक है, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन ऑब्जेक्ट. जो भी मटेरियल चाहिए आपको वो मटेरियल आप लोग अप्लाई कर सकते हो. क्रिएट वन मोर टीपॉट. ठीक है, I will apply different types of material on these three objects. ठीक है, अभी सेकंड वाला इन्होंने क्रिएट करके रखा है, ये वाला इस पे अप्लाई करता हूँ और ये वाला इस पर. ठीक है, these are three default materials which they have created. You can create it on your own also. ठीक है, so this is a solid glass. यहाँ पे दिख रहा है आपको इसका नाम solid glass. This is default. This is also default. This is also default. And this is solid glass, ceramic, wall paint. ठीक है, these are the material names. Default material names. अब ये किस प्रीसेट में है? These are the physical materials. ठीक है, ये सारे फिजिकल मटेरियल्स है रेडीमेड इन डिसमैक्स सॉफ्टवेयर. ठीक है, रेडीमेड जो है फिजिकल मटेरियल एडिटर 2018 के वर्जन में आता है. ठीक है, 2018 के अंदर आपको ऐसा मटेरियल एडिटर मिलेगा which will have the physical material editors और इसके अंदर से आप लोग आपके टाइप के प्रीसेट्स चूज कर सकते हो. I turn off this, so you will get to see this effects. ठीक है, ये वॉल पेंट है, इसको लगा. ओके, अभी ऐसे मटेरियल अप्लाई किया है. if I press F9, F9 is the shortcut for render. वैसे रेंडर आ गया. अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज दिख रहा है क्योंकि क्वालिटी के इसके अंदर हम लोग ने कुछ चेंज नहीं किया है. ठीक है, वी कैन ऑल्सो रिड्यूस दिस नॉइज. First see to the materials which we have applied. F9. ठीक है, देखो ऐसे कुछ रियलिस्टिक इफेक्ट इसके अंदर दिख रहा है. अब ये डिफॉल्ट लाइट्स है इसमें. We haven't applied any of the lights on this still, but you have the default lights in it is max so that you can just see the basic output. ठीक है, बेसिक आउटपुट मटेरियल्स का बेसिक आउटपुट आप लोग ये डिफॉल्ट लाइट से देख के निकाल सकते हो. ठीक है, सो इसमें बहुत सारे मटेरियल्स है इन्होंने क्रिएट करके रखे हुए. You can see to each material and you can apply and see the effect. ठीक है, but if you want to apply your own material then first I will go for the default this one. ठीक है, एक मटेरियल कुछ भी चूज करो. तो यहाँ पे जो फिजिकल मटेरियल एडिट का टैब है, ठीक है, फिजिकल मटेरियल, इसको क्लिक करोगे तो आपको ये सारे डिफॉल्ट मटेरियल्स इसके अंदर के मिलेंगे. ठीक है, these are the Autodesk default materials. These are the general materials, standard materials and Autodesk material library. ठीक है, फ्लोरिंग, मेटल, मिरर, मिसलेनियस, पेंट, प्लास्टिक, जो भी आपको चाहिए इसके अंदर से आप लोग सारे टेक्सचर्स ले सकते हो. ठीक है, ये सारे टेक्सचर्स है इसके अंदर, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स हैं. ठीक है, यू हैव टू सी यू हैव टू फाइंड व्हिच वन यू नीड. ठीक है, स्टोन बहुत सारे बहुत.
आपको बाहर से कुछ चूज करके इंपोर्ट करने का जरूरत ही नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक रेडीमेड उन्होंने बहुत सारे मटेरियल्स दे के रखे हुए हैं। ठीक है, जस्ट हैव टू अप्लाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसे चाहिए आपको वैसे टाइप के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। Just a second, guys. I will be back within a minute.
अच्छा ओके, so these are the materials and the textures in 3ds max. ठीक आहे, एवढे टेक्स्चर्स आणि मटेरियल्स आहेत 3ds max मध्ये, त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठलेही अप्लाय करू शकता. आता first what you have to see which type of material and which type of object you have. Now these are the physical materials. ठीक है, यहाँ पे देखो ये physical materials के अंदर आपको ये सारे दिखेंगे. ब्लेंडिंग मटेरियल्स के अंदर अलग दिखेंगे आपको. ठीक है, ब्लेंडिंग मटेरियल्स, डायरेक्ट टेक्स्ट शेडर ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, ये मटेरियल्स है, ये भी मटेरियल्स है, और यहाँ पे भी मटेरियल्स है. ठीक है, इसके अंदर यू विल हैव द टेक्सचर्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स. ठीक है, दिस इज अ मेटालिक पेंट मटेरियल. अभी इसके अंदर से आप लोग जो भी चाहिए drag and drop on this object. You can change the values. ठीक है, highlights, use the color or use the map. If you want the map, then you will add the texture. ठीक है, तो ऐसे कुछ इसके ऊपर रहेगा. क्लिक्स. अब ये सारे जो टर्म्स है, यू हैव टू व्हिच टर्म मींस व्हाट. ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है वो टर्म का, और वो कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, द फेस डिफ्यूज मटेरियल इज द कलर. ठीक है, फेस डिफ्यूज मटेरियल जो रहेगा आपका वो कलर का रहेगा, और बाकी जो रहेगा यू विल गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंस, रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग मटेरियल्स. ठीक है, कुछ ओवरलैपिंग मटेरियल्स रहेंगे, या फिर कुछ अदर मटेरियल्स उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे, मैप्स. तो मैप्स, तो वैसे टाइप से यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, जब तक आप लोग इसको अप्लाई करके प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे तब तक आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगे. ठीक है, सो आई हमने बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो हैव पीसीज एंड ऑल, आपके घर पे अगर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है, देन प्लीज गो थ्रू दिस पॉइंट्स एंड टर्म्स. ठीक है, तो यू विल गेट द ऑप्शंस इन दैट. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टाइप. अभी अगर मुझे स्टैंडर्ड टाइप अगर जाना रहेगा, ठीक है, अभी जस्ट शो यू वन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ मटेरियल. ठीक है, अभी ये तो सब एग्जांपल्स है, विल नॉट यूज दिस, विल यूज द स्टैंडर्ड मटेरियल. ठीक है, नो दिस इज स्टैंडर्ड, अप्लाई करो इस पे. और दिस इज द डिफॉल्ट प्रोसेस. ठीक है, अभी पहले जो आपको था, मैंने जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दिया था कि हाउ यू कैन अप्लाई द मटेरियल्स. ठीक है, एंड व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर देयर इन 3ds Max. नाउ यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस फॉर अप्लाइंग द मटेरियल्स. ठीक है, ये वाला प्रोसेस जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, नाउ दिस इज स्टैंडर्ड. आप जब ये ओपन करोगे मैक्स, या फिर अगर मटेरियल एडिटर ओपन करोगे आप लोग, तो आपको डिफॉल्ट मटेरियल आएंगे, उसके अंदर से आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर द मटेरियल्स, रीसेट सैंपल स्लॉट्स. ठीक है, एंड ऑल्सो शो मटेरियल इन व्यू पोर्ट्स. यहाँ पे सारे ऑप्शन है मटेरियल के. यू कैन गो एंड यू कैन select the materials options. Utilities, restore material editor slots.
So there are some errors in this. ठीक है, नंबर ऑफ मटेरियल्स विल बी विजिबल, या ऐसे जो आपको ड्रॉप ऐसे एक बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर आप लोग आगे आगे देख सकते हो। तो इसके बजाय यू कैन get all of the materials in one panel only. Okay, you can reduce the panel using this option. Okay, so now you don't have this. अब ये सारे मटेरियल्स इतने हैं आपके पास, अब इससे कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिफॉल्ट 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 फैसिलिटीज। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है, so this is the standard material. This material replace. ठीक है, अभी ये वाला जो मटेरियल है मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया है, और आई हैव अप्लाइड टू दैट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? स्टैंडर्ड मटेरियल अप्लाई किया, नेक्स्ट यू हैव दीज ऑप्शंस, नीचे जो दिख रहे हैं आपको ये ऑप्शंस, ठीक है, एम्बिएंट, डिफ्यूज एंड स्पेक्युलर। ठीक है, डिफ्यूज में अगर आप जाओगे या फिर से स्टैंडर्ड में जाओगे तो यहाँ पे आपको okay, first you have to see this F10 and just see that do you have a mental ray renderer in your scene. मेंटल रे नहीं है अभी इसके अंदर, ठीक है, यू हैव दिस टाइप ऑफ रेंडर्स। ठीक है, F10 इज द शॉर्टकट फॉर रेंडर सेटिंग्स। ठीक है, रेंडर सेटिंग्स का जो शॉर्टकट है दैट इज F10 एंड F9 इज द शॉर्टकट फॉर रेंडर, फॉर रेंडरिंग द इमेज आउटपुट। ठीक है, ये बहुत सारे सेटिंग्स है, ये आपको दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे। दीज आर द आर्नोल्ड मटेरियल्स। ओके, स्टैंडर्ड
डिफ्यूज, बिटमैप। अब ये सारे टेक्सचर्स है, ठीक है, दीज ऑल आर द टेक्सचर्स। नाउ यू हैव द बिटमैप, ठीक है, बिटमैप, then go to desktop, whichever file you want, image file, ठीक है, image file अगर आपको import करना है तो you can apply, you can use this option, open, because this is the bitmap जो ऑलरेडी अप्लाई किया है। अगर आपको सीन के अंदर ये वाला मटेरियल देखना है तो यू कैन प्रेस दिस ऑप्शन, ठीक है। अब इसके टाइलिंग्स वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यू कैन एडजस्ट द टाइल्स, यू कैन एडजस्ट द यूवीज, VW, ठीक है, कौन से एक्सेस में अप्लाई करना है, यू कैन एडजस्ट ऑल ऑफ दिस ऑप्शन यूजिंग दिस मैप। कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या रहेगा, एक्स वाई जेड यू डब्ल्यू एंड बी। नाउ 3D ऑब्जेक्ट्स हैव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स, एंड u v and w are the texturing coordinates, okay, material or the texturing coordinates which you will have in this material, ठीक है। टेक्सचरिंग के अंदर जो भी आप लोग अप्लाई करोगे उस मटेरियल के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट जो रहेंगे दैट विल बी u v and w, ठीक है। ये याद रखो आप लोग, u v and w is used for texturing and x y and z are for the objects, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम के अंदर भी, ठीक है, x y and z and u v and w coordinates। फिर से अगर चेंज करना रहेगा तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, you can apply a different material, ठीक है, यहाँ से भी यू कैन चेंज मटेरियल मोड, स्टैंडर्ड, एडवांस। अब ये सब आपको यूज करके देखना पड़ेगा, ठीक है, मैं जितना भी आपको यहाँ से दिखाऊंगा आपको कुछ ज्यादा कुछ उतना आइडिया नहीं मिलेगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू विल यूज एंड सी द आउटपुट। ग्लास, ठीक है, इसकी ऐसा ग्लास presets, different types of ready-made presets, okay, what is gold, gold, copper, candle,
ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच यू नीड टू अप्लाई। बहुत सारे टर्म्स है इसके अंदर, आपको एक टाइम में ही मैं दिखा दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे अप्लाई करता हूँ। टाइल्स, अभी इसमें से नॉइज रिड्यूस करना रहेगा। गो टू F10, यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स है सारे। जितना क्वालिटी बढ़ाओगे उतना आउटपुट अच्छा आएगा, बट उतना टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, सी नॉइज कम हो गया। और फुल्ली फिल्टर्ड और मीडियम क्वालिटी। ठीक है, चला गया पूरा नॉइज। क्वालिटी मीडियम रखा है। एंड नॉइज, नॉइज फिल्टरिंग, फिल्टर डायमीटर 3 पिक्सल्स। ठीक है, बाकी ये जो है, ये वाले जो है टर्म्स, ये वाले जो है, इट विल बी रिड्यूस्ड व्हेन यू इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ रेंडरिंग। ठीक है, अगर रेंडरिंग का रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो आपको और ज्यादा एचडी क्वालिटी उसका मिलेगा। ठीक है, एलिमेंट्स। ओके, so these are the options related to the materials। ठीक है, मटेरियल्स कहाँ से अप्लाई करना है, या प्रेस एम, दिस विल ओपन द मटेरियल एडिटर। लेकिन जब भी अगर आप लोग स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और आपने स्टार्टिंग में जब एम प्रेस करोगे तो तब आपको ऐसे स्लेट मटेरियल एडिटर ओपन होगा। ठीक है, सो दिस विल बी द स्लेट मटेरियल एडिटर। एंड यहाँ पे जो है कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर विल बी देयर। ठीक है, ये वाला जो है थोड़ा सा इजी है, इसलिए यू हैव टू ओपन एंड यूज दिस कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। और स्लेट मटेरियल एडिटर इज फॉर प्रोफेशनल्स। जब भी आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा व्हाट इज मटेरियल एडिटर एंड व्हाट आर द मटेरियल्स प्रेजेंट इन इट एंड हाउ यू कैन अप्लाई एंड यू कैन चेंज द वैल्यूज according to your need, then you can use that slate material editor। ठीक है, because though that material editor has nodes। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स, आपको ऐसे कनेक्शन करना पड़ता है सारे नोड्स को उसके अंदर, वो मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट यू स्टडी दिस, देन यू कैन सी द स्लेट मटेरियल एडिटर। बट दिस इज सफिशिएंट, अगर इसका नॉलेज रहेगा आपको तो आप लोग कितना भी क्वालिटी का अच्छा रियलिस्टिक रेंडर निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें और उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट इसमें थोड़ा सा लेयर बेस्ड एंड इसमें ऑप्शंस आपको ज्यादा इजीली मिल जाएंगे, उसके अंदर थोड़े से कॉम्प्लेक्स रहेंगे। ठीक है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। जिस टाइप का एडिटर आप लोग प्रैक्टिस करोगे वो इजी आपको, वो आपको इजी जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ एनीवन हैव एनी डाउट्स?
ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर हो रहे हैं ना? यस सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, प्लीज लेट मी नो if you have any doubts, till then I will save your attendance. Okay, you can leave. Thank you. See you in the next session.